हेलो प्लस वन बच्चों दिस इज़ माय थर्ड लेक्चर ऑफ ग्रेविटेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की थी। क्या कहा था? इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए बॉडी इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से we have calculated the gravitational potential energy when this mass small m is lying at a distance small r from the center of the earth. अब वो क्या आ गई थी आपके पास? That is equal to minus capital G capital M small m by small r. I told you कि here the significance of negative sign कि this gravitational potential energy is due to attractive forces. इसे मैंने कैसे डिराइव किया था कि when this mass moves through a small distance dr, small amount of work is done, that is minus f dr। और इसे इंटेग्रेट कर दिया कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी टू स्मॉल r पे इंटेग्रेट कर दिया और हमारे पास क्या आ गया था? माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। इफ दिस मास स्मॉल m इज लाइंग एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, तब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई थी? minus capital G capital M small m upon capital R plus h, where capital R is the radius of earth, और when it is lying on the surface of earth small h जीरो हो जाएगा। उस समय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई? माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m upon capital R। Then I told you कि when this mass m is dropped from this height h and it reaches on the surface of earth, what is the change in gravitational potential energy? क्या आ गई थी वो? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m इंटू h डिवाइड बाय r इंटू r प्लस h, एंड दिस लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ m v स्क्वायर। और किस वेलोसिटी के साथ दिस बॉडी इज स्ट्राइकिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ? दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gm इंटू h डिवाइड बाय r इंटू r प्लस h। एंड if here h is very small as compared to radius of earth, then change in gravitational potential energies जो हमने last work power energy में की थी, that is equal to mgh। in that case it will strike on the surface of earth with a speed under root of 2gh। clear? Then I told you if there are number of masses are lying together, then gravitational potential energy of the system is taken as the algebraic sum of their individual gravitational potential energy। अगर आपके पास 4 इक्वल मासेज हैं, दे आर लाइंग ऑन दी 4 कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर, ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज L यूनिट, देन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बिकम्स माइनस 4gm स्क्वायर डिवाइड बाय L माइनस 2gm स्क्वायर डिवाइड बाय रूट 2L, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। After that, I have defined the term gravitational potential. What is this? It is the amount of work done per unit mass when it is brought from infinity to any point inside the gravitational field of the earth, that is equal to minus gm by small r on the surface of earth. The gravitational potential is equal to minus gm by capital R. This gravitational potential is also a scalar quantity, and gravitational potential due to a number of masses at a point is taken as the algebraic sum of their individual potential. After that, I have defined a term escape velocity। क्या कहा था कि it is the minimum velocity required just to send a body outside the gravitational field of the earth, means कि this is the minimum velocity when it is given to a mass from the surface of earth, it goes out of the gravitational field of the earth, it will go at that point where there is no interaction between this mass and the earth। तो इसको मैंने कैसे ड्राइव किया था कि इंटेग्रेट कर दिया था, जो वर्क डन को इंटेग्रेट कर दिया कहाँ से कहाँ? r टू इन्फिनिटी f dr। तो आपके पास क्या आ गया था? वर्क डन क्या आ गया? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाय r। दिस वर्क इज यूटिलाइज इन जस्ट टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m v e स्क्वायर के साथ इक्वेट कर दिया था, तो एस्केप वेलोसिटी क्या आ गई थी? अंडर रूट ऑफ 2gm बाय r आ गई थी। और इसे हम ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव किया था विद द हेल्प ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द टोटल एनर्जी एट इन्फिनिटी। व्हेन ए बॉडी is given just escape velocity of the body at infinity is equal to 0, so at infinity kinetic energy is 0
as there is no interaction between mass and earth, so their gravitational potential energy is also 0. So total energy at infinity is equal to 0. टोटल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ क्या आ गई थी, हाफ स्मॉल एम वी ई स्क्वायर आ गई थी. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस क्या आ गई थी, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइड बाय कैपिटल आर. तो यहाँ से हमने एस्केप वेलोसिटी ड्राइव कर ली, तो क्या आ गई अंडर रूट ऑफ 2gm/r. दिस रिजल्ट implies that this escape velocity is independent of the mass of the body. It is only depending upon mass of the earth and radius of the earth. If mass is taken as constant, then escape velocity is inversely proportional to the square root of radius of the earth. If small g is taken as constant, क्योंकि gm को क्या लिख सकते हैं, gr square लिख सकते हैं, then escape velocity becomes under root of 2gr. In that case, escape velocity is directly proportional to the square root of radius of earth. If density of the earth is constant, taken as constant, तब मैंने स्मॉल g को क्या लिख लिया था, 4/3 g pi r rho. तो उस समय escape velocity क्या आ गई थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ आ गई थी. अगर यहाँ पे जितने भी वैल्यूज कांस्टेंट है, इन वैल्यूज कांस्टेंट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें, तो सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास मिनिमम escape velocity क्या आती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाती है. तो अगर किसी बॉडी को हाइट s से प्रोजेक्ट करें, उस केस में क्या है, escape velocity क्या आती है, अंडर रूट ऑफ 2gm/r प्लस h आ जाती है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि escape velocity क्या है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल विद विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट h और फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. देन आई टोल्ड यू कि अगर किसी बॉडी को n टाइम्स ऑफ escape velocity फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ प्रोजेक्ट करते हैं, तब इसकी वेलोसिटी एट इन्फिनिटी क्या आती है, अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर -1 इंटू वी ई आ जाती है. सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आया था. व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड थ्राइस ऑफ द escape velocity, देन व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट इन्फिनिटी. तो n की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट बिकम 2√2 टाइम्स ऑफ द escape velocity आ जाएगी. नेक्स्ट वी आर हैविंग ए टर्म दैट इज ऑर्बिटल स्पीड. फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज द सैटेलाइट. क्या होता है सैटेलाइट? सैटेलाइट इज ए बॉडी विच इज कॉन्स्टेंटली रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट अराउंड ए कंपैरेटिवली मच लार्जर बॉडी. फॉर एग्जांपल, अर्थ इज ए सैटेलाइट ऑफ सन एंड मून इज सैटेलाइट ऑफ ए अर्थ. द प्लैनेट जुपिटर एंड सैटर्न हैव द 12 and 9 satellites called moons respectively. All these are example of natural satellite. Man-made satellites are known as natural satellites. Russians were the first to launch an artificial satellite, that is Sputnik 1, on December 1951. What is the principle of launching the satellite? क्या है इसका प्रिंसिपल सैटेलाइट को लॉन्च करने का? देखिए, जैसे ये अर्थ है, अर्थ से हम किसी हाइट से खड़े होकर कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं किसी वेलोसिटी के साथ. ये सपोज कर लो किसी टावर से खड़े होकर हम, जिस टावर की हाइट कितनी है, h है, और इस h हाइट से अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट फेंकते हैं, सपोज इट इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u. इन दैट केस दिस ऑब्जेक्ट विल स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. कितने डिस्टेंस के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी, एट ए डिस्टेंस x, और वो डिस्टेंस क्या होगा, u इंटू अंडर रूट ऑफ 2h/g होगा. इस डिस्टेंस के ऊपर जाकर ये ऑब्जेक्ट क्या करेगी, फॉल करेगी. नाउ हियर सपोज कर लो कि दिस ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम सच ए हाइट, दैट हाइट इज वेरी वेरी लार्ज, और u इज आल्सो वेरी वेरी लार्ज. इन दैट केस दिस x बिकम्स ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ. उस केस में क्या है, अगर ये जो इसकी रेंज है अर्थ के रेडियस से ग्रेटर हो जाती है, तो उस केस में दिस ऑब्जेक्ट वॉन्ट बी एबल टू टच द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के सरफेस को टच नहीं कर पाएगी, यहां फॉल करेगी, फिर यहां फॉल करेगी, यहां फॉल करेगी. इस तरह से क्या है, उस केस में क्या है, दिस ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ. अर्थ के अराउंड क्या करेगी, रिवॉल्व करना शुरू कर देगी, और दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड हियर सैटेलाइट. उसी को हम सैटेलाइट कॉल करेंगे, और जिस स्पीड के साथ ये रिवॉल्व करेगी, दैट स्पीड इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड. उस स्पीड को हम क्या कॉल करेंगे, ऑर्बिटल स्पीड कॉल करेंगे. दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग द सैटेलाइट. इट मींस किसी ऑब्जेक्ट को वेरी लार्ज हाइट से विद लार्ज वेलोसिटी से
पैरेलल टू द ग्राउंड प्रोजेक्ट करेंगे, इन दैट केस इट्स रेंज विल बी ग्रेटर देन रेडियस ऑफ अर्थ एंड दैट बॉडी स्टार्ट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड क्या करेगी, वो रिवॉल्व करना शुरू कर देगी, और जिस स्पीड के साथ वो रिवॉल्व करेगी दैट स्पीड इज कॉल्ड ऑर्बिटल स्पीड। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब ये ऑर्बिटल स्पीड के साथ अर्थ के अबाउट रिवॉल्व करेगी तो उस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करेगा। हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट। अगर सपोज करो किसी सैटेलाइट को h हाइट से हमने प्रोजेक्ट किया है, h हाइट से प्रोजेक्ट किया है, तो इट इज रिवॉल्विंग इन ए ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल R प्लस h। तो here centripetal force required is capital G, capital M, small m upon R plus h is provided by this gravitational force of attraction, that is mv naught square upon R plus h. So this centripetal force mv naught square upon R plus h is provided by this gravitational force of attraction between the earth and satellite. तो ये किस वेलोसिटी के साथ अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करना शुरू कर देगी, द स्पीड क्या होगी, अंडर रूट ऑफ 2gm अपॉन r प्लस h। इस स्पीड के साथ ये अर्थ के अराउंड क्या करेगी, रिवॉल्व करना शुरू कर देगी। सो हियर दिस स्पीड इज नोन एज ऑर्बिटल स्पीड। तो दिस ऑर्बिटल स्पीड, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इट इज वेरी क्लियर दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द mass of the satellite. It is only depending upon the height where it is revolving. More is the height, lesser will be the orbital speed. जितनी height कम होती जाएगी, orbital speed क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो here we can calculate the time period of this satellite. Time period क्या आ जाएगा, 2 pi r plus h upon v naught आ जाएगा। That will be 2 pi r plus h raised power 3/2 under root of 2gm. This is the time period of this satellite. Now those satellites which are revolving in the direction of earth, that is from west to east along its equatorial plane, are known as geostationary satellites or synchronous satellite, and they are also having the same time period as that of earth. Means इनको हमने स्टेशनरी सैटेलाइट कॉल ही ऐसे इसलिए किया है कि उनकी एंगुलर वेलोसिटी और उस सैटेलाइट की अर्थ की एंगुलर वेलोसिटी और उस सैटेलाइट की एंगुलर वेलोसिटी क्या है, सेम है, जिसके कारण उनकी एंगुलर रिलेटिव एंगुलर स्पीड क्या है, 0 है। दे लुक्स लाइक स्टेशनरी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सो सैटेलाइट्स व्हिच आर रिवॉल्विंग in the direction of earth, that is from west to east along its equatorial plane, having same time period as that of earth, are known as geostationary satellite. Height of such satellite will be, यहाँ से हम उन सैटेलाइट की हाइट निकाल सकते हैं। हाइट उन सैटेलाइट्स की क्या होगी, t स्क्वायर r स्क्वायर इंटू g डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर होल रेज पावर 1/2 माइनस r. This will be the height of those geostationary satellite. अब यहाँ पे t क्या है, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ है, दैट इज 24 आवर है, r रेडियस ऑफ द अर्थ है आपके पास, और 4 पाई स्क्वायर, ये सारी वैल्यूज नोन है। अगर इन सब की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, हाइट ऑफ सैटेलाइट क्या आ जाती है, 36,000 किलोमीटर आ जाती है। और जिस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहे हैं उस ऑर्बिट का जो रेडियस आ जाएगा दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 42400 किलोमीटर आ जाएगा। दिस इज द ऑर्बिट, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट वेयर दीज सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग। इनकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है दिस इज नियरली इक्वल टू क्या है, 3.08 किलोमीटर पर सेकेंड है। और वो सैटेलाइट विच आर रिवॉल्विंग वेरी नियर टू द अर्थ, उनकी जो स्पीड होती है, टाइम पीरियड होता है 86.4 मिनट होता है, और उनकी जो स्पीड है दैट इज when the satellite is revolving very near to the surface of earth, their orbital speed is 8 किलोमीटर पर सेकेंड। और जैसे ही हमारे पास escape velocity क्या है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है, orbital speed it means that 8 किलोमीटर पर सेकेंड है when they are revolving at a very small height.
So this result implies that at a very small height, orbital speed of the satellite is lesser than the escape velocity. अगर किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट से आपने एस्केप कराना है तो इट मीन्स दैट आपने क्या करना होगा, उनकी स्पीड को इंक्रीज करना होगा. कितना इंक्रीज करना होगा? When the satellite, when h is very very small, orbital speed क्या होगी? अंडर रूट ऑफ 2gm by r आ जाएगी. सॉरी, दिस इज नॉट एनी, यहाँ पे 2 नहीं है. दिस इज ऑर्बिटल स्पीड के अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h है. व्हेन h इज वेरी वेरी स्मॉल, ऑर्बिटल जो स्पीड आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm by r आ जाएगी और अंडर रूट ऑफ gr आ जाएगी. दिस रिजल्ट implies that orbital speed of the escape velocity is root 2 times the orbital speed of the satellite. तो यहाँ से बड़ा क्लियर है कि किसी सैटेलाइट को अपने ऑर्बिट से व्हेन दैट सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग एट ए स्मॉल हाइट, अगर उसको अपने ऑर्बिट से एस्केप कराना है तो उसकी स्पीड हमें रूट 2 टाइम्स इंक्रीज करनी पड़ेगी. मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें ट्वाइस करनी पड़ेगी. मीन्स हमें अगर किसी सैटेलाइट जो कि स्मॉल हाइट के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है उसकी स्पीड अगर नियरली 42% इंक्रीज कर दोगे तो वो अपने ऑर्बिट से क्या करेगा? एस्केप कर जाएगा. जस्ट रिमेंबर कि आपके पास जब भी कोई सैटेलाइट अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उस समय नो वर्क इज डन इन दैट ऑर्बिट. वन कंप्लीट ऑर्बिट रेवोल्यूशन में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा. क्लियर? एंड रिमेंबर वन थिंग कि सैटेलाइट के अंदर जो स्टेज होती है वो वेटलेसनेस वाली होती है. सैटेलाइट के अंदर जो स्टेज है दैट इज ए स्टेज ऑफ वेटलेसनेस. इसका कारण क्या है? व्हाई देयर इज ए स्टेज ऑफ वेटलेसनेस इन द सैटेलाइट? सपोज करो कि ये सैटेलाइट है. सैटेलाइट में अब यहाँ पे ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट में ये कोई मास स्मॉल एम है. ठीक हो गया? इस मास स्मॉल एम का जो वेट होगा, here weight of this mass small m in this satellite will be क्या होगा? Its weight will be acting in the downward direction, that is mg dash, और इसकी नॉर्मल एक्शन क्या होगी? इधर होगी. और इसके ऊपर क्या होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर एक्ट कर रही है? वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगी. और यहाँ पे जो आपके पास वेट ऑफ द सैटेलाइट आ जाएगा mg प्राइम माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स which is acting on this satellite. Clear? तो mg प्राइम की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? That is gm अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर होगी. और इसके ऊपर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी वो कितनी एक्ट करेगी? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर होगी. So this normal action will be here 0. This normal action is the weight of this body, observed weight of the body in this satellite. So apparent weight of the body in a satellite is 0. means satellite में कोई object है that behaves like a freely falling lift की तरह behave करेगी. means satellite के अंदर जो stage होती है वो क्या होती है? weightlessness वाली stage होती है. clear? now जब कोई object just remember one thing, अगर कोई सैटेलाइट अर्थ के पोलर एक्सिस के लॉन्ग रिवॉल्व कर रहा है तो ऐसे सैटेलाइट को हम क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट कहते हैं. और दे आर रिवॉल्विंग एट ए वेरी स्मॉल हाइट दैट इज नियरली इक्वल टू क्या होती है? 80 किलोमीटर होती है. तो जब सैटेलाइट आपके पास रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में, उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. इस तरह से टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट व्हेन इट इज रिवॉल्विंग इन इट ऑर्बिट किसके इक्वल आ जाएगी? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगी. काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट. काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ m v नॉट स्क्वायर. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h. v नॉट की वैल्यू कितनी है? दैट इज कितनी है? g m अपॉन r प्लस h है. माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस h. तो ये कितनी आ जाएगी? माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ट्वाइस ऑफ r प्लस h. दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट when it is revolving at a height at
from the surface of the earth. Here negative sign implies that कि आपके पास जो सैटेलाइट है, जो आपके पास सैटेलाइट है, that is bound with the gravitational field of the earth की gravitational field के साथ क्या हुआ है, बाउंड हुआ हुआ है। क्लियर? तो यहाँ से बड़ा क्लियर है कि आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है, अगर देखा जाए तो आपके पास न्यूमेरिकली देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। व्हेन द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से कम है। अब काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, काइनेटिक एनर्जी कम है, इसीलिए ये हमारे पास टोटल एनर्जी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, न्यूमेरिकली इक्वल टू द किसके है, टोटल एनर्जी के इक्वल है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, दैट इज हाफ ऑफ द टोटल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी जो है दैट इज हाफ दैट इज ट्वाइस ऑफ द टोटल एनर्जी है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के ग्राफ प्लॉट करें, काइनेटिक सभी तीनों एनर्जी हैं, चाहे टोटल एनर्जी हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, all these energy are inversely proportional to the radius of their orbit। तो तीनों ही अगर उनके रेडियस ऑफ द ऑर्बिट के लिए ग्राफ प्लॉट करें तो तीनों के लिए आपके पास ग्राफ क्या आएंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएंगे। दिस ग्राफ विल बी द फॉर काइनेटिक एनर्जी, दिस ग्राफ फॉर बी द टोटल एनर्जी एंड दिस ग्राफ फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसकी स्लोप क्या आ रही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की स्लोप क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, टोटल एनर्जी की स्लोप क्या है, कम है। वो इसलिए ऊपर वाला ये टोटल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, नीचे वाली क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। मैथमेटिकली बड़ा क्लियर है कि टोटल एनर्जी आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की क्या है, हाफ है, तो इसलिए टोटल एनर्जी की स्लोप आपके पास क्या है, कम है। जस्ट रिमेंबर कि जब तक आपके पास किसी सैटेलाइट में जब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है, तो इट मींस दैट वो क्या करेगा, उस जब तक इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव रहेगी तब तक वो ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहेगा। जैसे ही किसी सैटेलाइट की टोटल एनर्जी जीरो हो जाती है, उस केस में वो सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से क्या करेगा, एस्केप कर जाएगा बाय अडॉप्टिंग द पैराबोलिक पाथ। एंड रिमेंबर, तभी हम क्या कहते हैं, इस नेगेटिव टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी को, नेगेटिव टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज कॉल्ड इट्स बाइंडिंग एनर्जी। दैट इज कॉल्ड इट्स बाइंडिंग एनर्जी मींस ये वो एनर्जी है जिसके साथ आपके पास सैटेलाइट क्या हुआ है, अपने अर्थ के साथ बाउंड हुआ है। और यू कैन से कि बाइंडिंग एनर्जी इज द नेगेटिव टाइम्स ऑफ द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट when it is given to it will escape from the orbit। जब आप इतनी ही टोटल एनर्जी, नेगेटिव टाइम्स द टोटल एनर्जी आप सैटेलाइट को दे दोगे, उसकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, सैटेलाइट की जीरो हो जाएगी। जैसे ही वो जीरो हो जाएगी वो अपने ऑर्बिट से एस्केप कर जाएगा बाय अडॉप्टिंग द पैराबोलिक पाथ। जस्ट रिमेंबर, व्हेन एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज पॉजिटिव, जब किसी सैटेलाइट की एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी then it will escape from its orbit following a हाइपरबोलिक पाथ। हाइपरबोलिक पाथ वो क्या करेगा, अडॉप्ट करेगा। देखिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखो। जब तक उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इट मूव्स इन ए आइदर सर्कुलर और एलिप्टिकल ऑर्बिट। जैसे जीरो हो जाएगी इट विल एस्केप फ्रॉम द ऑर्बिट बाय अडॉप्टिंग पैराबोलिक पाथ, और जैसे अगर इसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी इट विल एस्केप फ्रॉम इट्स ऑर्बिट बाय अडॉप्टिंग द हाइपरबोलिक पाथ। एंड रिमेंबर कि जैसे जैसे किसी सैटेलाइट की हाइट इंक्रीज करती जाती है, हाइट इंक्रीज करती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती जाएगी, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और जब व्हेन ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग इन ऑर्बिट देन इट्स नो, उसको क्या है, उस समय जब आपके पास अपने ऑर्बिट में पड़ा हुआ है उस समय क्या है, इट हैज रिक्वायर्ड नो एनर्जी टू कीप इन इट्स ऑर्बिट। जब, और जस्ट रिमेंबर, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट इज इंक्रीज देन एनर्जी इंक्रीजेज एंड इट स्टार्ट्स मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ स्मॉलर ऑर्बिट। जैसे जैसे
क्योंकि क्या है, मैंने कहा वेलोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट है। अगर आप हाइट डिक्रीज करोगे इसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और ऑर्बिट का रेडियस क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपने याद रखने हैं। तो लास्ट टॉपिक है आपके पास ग्रेविटेशन का, व्हाट इज दैट, केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। व्हाट आर दी केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन? क्या फर्स्ट लॉ क्या है? कहता है ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन elliptical path. Sun is at the one focus of the ellipse. Second क्या है कि all these planets describe equal area in equal interval of time. All these planets describe equal area in equal interval of time. Means delta A upon delta T, that remains constant of these planets. This is called area velocity of the planet. Area velocity of the planet that remains constant. This law is based upon law of conservation of angular momentum. Means ये आपके पास क्या है, elliptical orbit है जिसमें ये planets क्या कर रहे हैं, revolve कर रहे हैं, और sun क्या है आपके पास at the one focus of the ellipse है। तो क्या कहा गया है कि आपके पास जैसे ये रिवॉल्व कर रहे हैं कि सपोज कर लो किसी की भी टाइम डेल्टा t1 में इसने ये वाला एरिया डिस्क्राइब किया है, और इधर डेल्टा t2 टाइम में इसने ये वाला एरिया बनाया है। तो हियर डिस्क्राइब किया है डेल्टा a1 अपॉन डेल्टा t1 इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा a2 अपॉन डेल्टा t2 होगा। तो मीन्स मैंने क्या कहा, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मीन जब प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। मीन्स जैसे जैसे ये प्लैनेट्स सन के नजदीक आएंगे उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। एक्चुअली क्या है, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम mvr क्या होता है, कांस्टेंट होता है। v क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है। तो जैसे जैसे r कम होगा वेलोसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। तो यहीं से हम प्रूव कर सकते हैं कि इनकी एरिया वेलोसिटी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। सपोज कर लो कोई भी प्लैनेट्स a टू b जाता है, a टू b जाएगा तो आपके पास क्या होगा, इसकी जो सपोज कर लो कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, डेल्टा x डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितने टाइम में, डेल्टा t टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो v की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, r इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब देखिए अगर ये जो एरिया डिस्क्राइब किया है, ये जो एरिया होगा, इस स्मॉल पोर्शन का जो एरिया होगा डेल्टा a, ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ab into r. What is your ab? ab is delta x into r. This will be its area. तो आप डेल्टा x into r को क्या लिख सकते हो, that can be written as twice of delta a. तो this can be written as twice of m delta a upon delta t into is equal to constant. m यहाँ पे कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो डेल्टा a अपॉन डेल्टा t क्या है, आपके पास कांस्टेंट आ जाएगा। सो वी कैन से कि दिस सेकंड लॉ Kepler's second law of planetary motion is based upon conservation of angular momentum, means their area velocity remains constant. थर्ड आपके पास लॉ क्या है Kepler's का, कि स्केयर ऑफ देयर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ देयर मेजर एक्सिस। स्केयर ऑफ देयर टाइम पीरियड t स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, और t1 स्केयर अपॉन r1 क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, t2 स्केयर अपॉन r2 क्यूब। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। So this law is actually based upon Newton's law of gravitation. What is this Newton's law of gravitation? According to Newton's law of gravitation, force क्या होगी सन और इस planet में, that is capital G, capital M, small m by r square. It is provided by centripetal force. What is that? m r 4 pi square upon t square. अब देखिए यहाँ पे स्मॉल m कैंसल आउट हो गया, कैपिटल G, कैपिटल M, 4 पाई स्क्वायर, ये सारे फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं t स्क्वायर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, r क्यूब है। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन।
यहीं से कहते हैं कि अगर अर्थ और सन के बीच में जो भी प्रेजेंट डिस्टेंस है, प्रेजेंट डिस्टेंस हाफ हो जाए तो नंबर ऑफ डेज लेफ्ट इन ईयर विल बी 129 डेज, 129 डेज रह जाएंगे। सो दिस इज अबाउट द ग्रेविटेशन। तो बच्चों, आपको जैसे पता है कि ये सारी की सारी मेरी क्लासेस इस राष्ट्र को समर्पित हैं, इस राष्ट्र के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित हैं, पीएम केयर फंड को समर्पित हैं। सो बच्चों, इस महामारी से बचने के लिए आपने 3 W's का ख्याल रखना है। वियर योर मास्क, वॉश योर हैंड्स, वॉच योर सोशल डिस्टेंस। और इन तीनों W's का ख्याल रखते हुए आपने कोरोना को हराना है और इंडिया को जिताना है, और जिससे आपने स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना